So, good morning, everyone. Today, we are going to start chapter number 4 of our grammar book, that is Question Tags. The name of the chapter is Question Tags. Now, before I started the class, I asked a simple question to you that by now you all know me, don't you? I asked this question. I'm sure many of you might have missed this small question which I asked you when I was confirming whether you know me or not. So, that small question which I asked you is a question tag, right? So, let us understand the definition once. What are question tags? Question tag is a small question asked to the listener at the end of a sentence for his confirmation. एक छोटा क्वेश्चन जो हम अपनी लैंग्वेज हिंदी या पंजाबी में भी जब हम बात करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो हम उनकी कंफर्मेशन लेने के लिए हम ये कहते हैं है ना, वी से दिस, है ना, आज हम घूमने जाएंगे, है ना मम्मी. सो जो है ना इन अवर इंग्लिश, हिंदी एंड पंजाबी इज क्वेश्चन टैग इन इंग्लिश. वो हम जो है ना बोल रहे हैं दैट वी आर आस्किंग फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द लिसनर. जो हमारी बात सुन रहा है उससे कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं. एंड सिमिलरली व्हेन वी वांट टू कंफर्म समथिंग, then we ask a small question at the end of a sentence, and that small question is called question tag, right? For example, Peter is happy. अब मैंने ये कंफर्म करना है. I want the confirmation. Peter is happy, isn't he? Peter is not happy. So Peter is not happy. Is he? Now you can see the highlighted words isn't he and is he in the second sentence. So these are questions. Isn't he? एक हमने क्वेश्चन पूछा कंफर्मेशन के लिए कि क्या पीटर खुश है. पीटर खुश है ना. पीटर खुश नहीं है, राइट. तो हम ये एक छोटा स्मॉल क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं कंफर्मेशन के लिए, दैट इज क्वेश्चन टैग. अब कमिंग टू द पॉइंट, हाउ टू मेक क्वेश्चन टैग्स. हम क्वेश्चन टैग्स बनाते कैसे हैं. Now, adding a question tag in a sentence depends on the kind of sentence. अब ये डिपेंड करेगा कि हमने कैसे क्वेश्चन टैग ऐड करना है, और ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारा सेंटेंस कैसा है. Now, if we have a sentence with helping verb, अगर तो हमारे पास उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है, इन दैट केस हम क्या करेंगे, हम उस हेल्पिंग वर्ब को पिक करेंगे. Peter is working hard. In this sentence, we have helping verb is. अब मैंने इसमें क्वेश्चन टैग ऐड करना है इस पूरे सेंटेंस में. सो व्हाट आई विल डू इज, मैं ये पूरा सेंटेंस ऐसे ही लिख लूँगी दोबारा. आई विल री राइट दिस सेंटेंस. Peter is working hard. After that, I will put a comma. Then I will pick that helping verb is. I added not with it, and then I wrote pronoun. In our sentence, we have proper noun Peter, but when I am adding question tag, I will use pronoun. I will not use that proper noun. मैं वो नहीं यूज करूंगी, मैं उस नाउन की जगह पे pronoun यूज करूंगी. Again, I am telling you how do we add question tags. Now, the sentences where we have helping verb in it, what we do is to add question tag, we rewrite the whole sentence, then we put a small comma, then we write the helping verb which is there in the sentence, we add not with it, and then we use pronoun, and at the end we put question mark. Is this clear? So this formula is for the sentences where we have helping verbs. Now, when we don't have a helping verb in a sentence, how to make question tags when the sentence is without helping verb. Now look at this first example. Peter works hard. In this sentence, I don't have a helping verb. What is my main verb? It is works. तो जो वर्क्स है वो कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है,
वर्क इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। अब पीटर यहाँ पे सिंगुलर है हमारा सब्जेक्ट, इसलिए यहाँ पे वर्क्स आ गया, राइट। अब इसका जब मैंने क्वेश्चन टैग बनाना है, पहले तो मैंने वो सारा सेंटेंस रीराइट कर दिया, पीटर वर्क्स हार्ड, देन आई पुट कॉमा देयर, मैंने कॉमा लगा दिया। अब मैंने क्या करना है, हाउ टू ऐड क्वेश्चन टैग इज, मैंने ये चेक करना है कि मेरा जो वर्ब है, मेन वर्ब है सेंटेंस में, वो किस टेंस में है। अब ये मेरे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, राइट। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम या तो क्वेश्चन बनाने के लिए डू यूज करते हैं या डज यूज करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर सब्जेक्ट। डू हमने डू यूज करना है कि डज यूज करना है, दैट विल डिपेंड अपॉन आवर सब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, पीटर, पीटर इज सिंगुलर, सो इसके लिए मैंने क्या यूज किया, डजंट ही, पीटर के लिए प्रोनाउन तो यूज करना ही था, राइट। सो पीटर वर्क्स हार्ड, यहाँ पे वर्क्स जो है हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, राइट। अब उस प्रेजेंट टेंस में हम क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए ईदर वी यूज डू और वी यूज डज, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर सब्जेक्ट कि हमने डू यूज करना है कि डज। अब पीटर जो है वो सिंगुलर है मेरे पास यहाँ पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डजंट ही लिखा। ही क्यों यूज किया, क्योंकि हम जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तब हम प्रोनाउन यूज करते हैं। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, पीटर वर्कड हार्ड। अब अगेन इन दिस सेंटेंस आई डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब, बट मेरी वर्ब कौन सी है, वर्कड, विच मीन्स इट इज इन सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट में हम क्वेश्चन पूछने के लिए क्या यूज करते हैं, डिड। सो हाउ वुड आई फ्रेम अ क्वेश्चन टैग, आई वुड ऐड अ क्वेश्चन टैग, Peter worked hard. I rewrote the sentence, whole sentence. Then I put comma, and then I added didn't he. ही हमने यूज किया पीटर के लिए क्योंकि हम प्रोनाउन यूज करते हैं। वाई डिड आई यूज डिडंट हियर, बिकॉज माई वर्ब वॉज second form of verb and it was simple past tense, and in simple past tense we use did, right। अब यहाँ पे डज क्यों किया था, बिकॉज वर्क्स जो था वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब था, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, इसलिए आई एडेड डज हियर। Next example is Rohan and Raman came late. Again, I don't have any helping verb in this, and my verb is came. Again, came is second form of verb. It means it is simple past tense. So simple past है तो मैं क्या use करूँगी, did. Rohan and Raman came late, comma, didn't they। अब आपने नोटिस क्या करना है कि यहाँ पे प्रोनाउन क्या यूज किया है मैंने, दे, बिकॉज हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, हम दो लोगों की बात कर रहे हैं, रोहन की एंड रमन की, राइट। दैट इज वाई मैंने प्रोनाउन यूज किया है दे। तो आपने क्वेश्चन टैग में जो प्रोनाउन यूज करना है दैट शुड डिपेंड अपॉन द सब्जेक्ट। सो नेक्स्ट इज पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। अब आपने एक चीज नोटिस की होगी यहाँ पे, आई विल टेक यू बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। अब यहाँ पे हमारा सेंटेंस जो था पीटर इज हैप्पी, है ना, इसमें हमारे पास ये असर्टिव सेंटेंस है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट यूज नहीं किया हुआ। पर जब हमने क्वेश्चन टैग लगाया तब हमने नॉट ऐड कर दिया। एंड इफ यू सी द सेकेंड सेंटेंस, दिस इज अ नेगेटिव सेंटेंस, इसमें हमारे पास नॉट है, बट जब हमने क्वेश्चन टैग ऐड किया हमने नॉट को हटा दिया, वी डिड नॉट यूज नॉट। First of all, see the difference. Then I will explain the things to you. यहाँ पे we have positive sentence, but our question tag is negative. Here we have a negative sentence, and our question tag is positive. So what is the rule? When do we make positive question tag? When our sentence is negative, question tag is positive. When our sentence is negative, question tag is positive. It means, look at example, Peter is not happy. अब negative है हमारा sentence, question tag क्या आ गया, positive. Peter is not happy. Is he? Right? Now negative question tag कैसे आएगा? When our sentence is positive or assertive, that is also called assertive.
देन अवर क्वेश्चन टैग इज नेगेटिव। अगर हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, मतलब असर्टिव सेंटेंस है, उसमें हमने नॉट नहीं यूज किया हुआ, देन इन क्वेश्चन टैग वी विल राइट नॉट, we will add not with it. So this is how, when our sentence is positive, question tag is negative, and when our sentence is negative, question tag is positive. And another thing you might have observed, that I have not used not completely. मैंने contraction use किया है. I used doesn't, didn't. I did not write does not, did not. मैंने क्या यूज किया है? कॉन्ट्रैक्शंस। तो जब हम क्वेश्चन टैग ऐड करते हैं, हम कॉन्ट्रैक्शंस यूज करते हैं, हम फुल फॉर्म में नहीं यूज करते उसको। मैं यहाँ पे अगर डज नॉट लिखूंगी देन इट विल बी रॉन्ग, क्योंकि मैंने क्वेश्चन टैग बनाना है एंड आई हैव टू यूज कॉन्ट्रैक्शंस। तो अब कॉन्ट्रैक्शंस आपने करी होंगे इन योर प्रीवियस क्लासेस, यू हैव डन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक, इज नॉट कॉन्ट्रैक्शन क्या है? इजंट, आरंट, एंट, wasn't, weren't, hasn't, haven't, hadn't, don't, doesn't, didn't. But here I have highlighted two contractions. कौन से? shall not and will not. अब हम shall not को shalln't नहीं बोलेंगे. This is not shalln't, this is shan't. Shall not का contraction is shan't. Will not का contraction willn't नहीं होता. Will not का contraction क्या होगा? won't. ये दो contractions students commit mistakes in these two contractions. So make sure जब आप shall not की contracted form लिख रहे हैं, then you write shan't, and when you writing will not, then you write won't. It is not willn't, it is won't. That is why I have highlighted these two contractions. उसके बाद आपके पास और contractions क्या हैं? कैन नॉट चेंज हो जाता है कांट में, ऑट नॉट, ऑटंट, मसंट, शुडंट, वुडंट। ये सारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जो आप क्वेश्चन टैग में यूज करते हैं, राइट? अब हमारे पास देयर आर अ फ्यू पॉइंट्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी डू क्वेश्चन टैग। सबसे पहले यूज ऑफ कॉमा, मतलब when we rewrite the whole sentence, before adding question tag we have to put comma. Then use of small alphabet. Small alphabet का मतलब है जब आप क्वेश्चन टैग ऐड कर रहे हैं तो जो फर्स्ट अल्फाबेट है, आर यू सीइंग दैट दिस इज हाईलाइटेड? आई को मैंने स्मॉल किया है, हाईलाइट किया है। अगर आप कैपिटल आई लिखोगे देन दैट विल बी रॉन्ग, कैपिटल आई नहीं लिखना। यूज कॉन्ट्रैक्शंस इजंट एंड डोंट। यूज कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब आपने एक्सपैंडेड फॉर्म में नहीं लिखना, इज नॉट, डू नॉट, राइट? दैट विल बी इजंट, डोंट। देन पुट क्वेश्चन मार्क। देखो हम क्वेश्चन टैग ऐड कर रहे हैं तो वी हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क। इफ यू डोंट पुट क्वेश्चन मार्क देन योर मार्क्स आर डिडक्टेड। देन यूज ऑफ प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन यूज करना है। वी विल नॉट use the same subject, we will use the pronoun for that subject. Now look at the example. Raman and Rohit play football, comma, the first point which I said use of comma, I put comma here. Then the second point which I said small alphabet, D is small here. Then third point which I said that you have to use contractions, तो यहाँ पे मैंने don't लिखा है, do not नहीं लिखा। Then use of pronoun, यहाँ पे Raman and Rohit are two people, so I have written they, I have used pronoun they, and then I have written put question mark. This is also done. So these are the important points to be kept in mind when we do question tags. I hope that the topic is clear to you.